Hello 10th standard student, this is English class and today we will see 1.4 All the World's a Stage. So this poem is written by great poet and dramatist also William Shakespeare. He was born in 1564 and he passed out 1660. So William Shakespeare was an English poet, playwright and actor widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's prominent, it means famous dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. Bard means poet and Avon means hometown. So उसे बार्ड ऑफ एवन यानी पोएम्स का पोएट का होम टाउन भी कहा जाता है. So now about this poem, All the Words a Stage. This poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. Means accepted. Enacted means accepted. So this poem is totally comparative poem. So it means there are lots of metaphoric situation. Okay. So in this poem, in the poem, the poet compares the entire world to a stage, and all human beings, man and woman, have been referred to as actors who are enchanting their parts. According to the poet, births, our birth and dates, okay, are pre-decided, and each man merely takes on different role during his lifetime. Here, the 7 stages of his life are termed as 7 acts. सो इस पोएम में जो है वो हम ह्यूमन बींग्स उनकी जो बर्थ है डेथ है वो सब कुछ डिसाइडेड होती है और हर एक स्टेज में हम जो है हर एक स्टेज से गुजरते हैं और हर एक स्टेज में अपना डिफरेंट रोल हम प्ले करते हैं. यही विलियम शेक्सपियर अपने इस पोएम में बताने की कोशिश कर रहे हैं और वो फुल ऑफ एनर्जेटिक पोएम है. हमारे स्टेजेस बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए हैं. सो now I'll explain the poem. So listen carefully. All the world's a stage, and all the men and women merely players. It means this total world is a stage, and all men and all women are only purely just an actors. Players, it means actors. They all are the actors. They have their exits and their entrance. Exits means death and entrance means birth. So poet told here that everyone's birth and everyone's death is already decided. And one man in his time, it means in his life, plays many parts. According to the William Shakespeare, each and everyone has different roles during his lifetime. His acts being 7 stage. It means his life divided into 7 parts and all these parts has their different role. Each and every person have their different roles in all those 7 stages. हर एक पर्सन के जो लाइफ है उसकी जो बर्थ है और जो डेथ है यानी एग्जिट एंट्रेंस है जो है वो सब पहले से ही डिसाइडेड है और हर एक पर्सन के अपने लाइफ में 7 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं और हर एक स्टेज में हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. उसके हर एक रोल हर एक वक्त अपना अपना रोल अलग अलग होता है. सो यही इस पोएम में विलियम शेक्सपियर एक्सप्लेन कर रहे हैं. हर एक स्टेज एक्सप्लेन कर रहे हो है और हर एक स्टेज में हर एक पर्सन किस तरीके से बिहेव करता है इन शॉर्ट हमें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है. ओके. First stage, at first, the infant. Infant means just a newborn baby, a young child. First, the infant mewling and cooking in the nurse arms. सो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मेवलिंग्स मीन्स रोता है एंड कुकिंग इट मीन्स थ्रोइंग अप और वोमिटिंग इन नर्स आर्म्स. सो सबसे पहले जब वो जन्म लेता है तो नर्स के पास होता है और उसके बाहों में उसके आर्म्स में वो रोता है और वोमिटिंग करता है. जो भी उसका डाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है इस तरीके से वो वोमिटिंग करता है नर्स के आर्म्स में. देन द वाइनिंग स्कूल बॉय
with his catchel and shining morning face, creeping like snail. Whining means to make off a long high pitched cry or sound. यानी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है. Then the whining school boy means crying school boy with his catchel, with his with his school bag and shining morning face. ओके तो फेस वगैरह बना के सवेरे वो क्या करता है, क्रिपिंग लाइक स्नेल. क्रिपिंग मीन्स मूविंग स्लोली बट लाइक स्मेल. तो वो मूव करता है, लेकिन कैसे मूव करता है, स्नेल की तरह. जैसे स्नेल कैसे धीरे 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 बहुत ही स्लोली 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 जाता है, तो वैसे ही वो जाता है स्कूल में, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती स्कूल में जाने के लिए. ओके तो फर्स्ट स्टेज इन्फेंट होने के बाद, एक न्यूबॉर्न बेबी के बाद वो एक स्कूल बॉय बन जाता है, जहाँ पे वो स्कूल में जाता है अपने स्कूल बैग के साथ, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती उसकी, इसलिए वो वाइनिंग करता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है, चिल्लाता है, और अपना फेस भले ही वो अच्छा दिखता है, लेकिन स्कूल जाने के लिए वो कैसे जाता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल. क्रिप करता है, स्लोली स्लोली, बहुत ही स्लोली स्लोली मूव करता है, जैसे कि स्नेल हो. ओके अनविलिंगली टू स्कूल. ऐसे क्रिपिंग करते करते हुए वो कहाँ पे जाता है, बिल्कुल भी इच्छा ना होते हुए भी स्कूल में जाता है. ओके एंड देन द लवर. हियर विलियम शेक्सपियर ह्यूमन बींग्स थर्ड स्टेज डिस्क्राइब्स that is lover. Sighing like furnace. Furnace is used to describe a very hot place and enclosed structure for heating materials to a very high temperature. ये बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली मशीन जैसे होती है, उसकी तरह जो लवर की है, जो तो अपने थर्ड स्टेज में जाते हैं, उसकी आहें होती है. और वो क्या करता है, विथ अ वोफुल बैलेड. वोफुल मीन्स बहुत ही दुख दर्द से भरे हुए पोएम्स लिखता है. बैलेड इट्स अ टाइप ऑफ पोएम. सो बहुत ही दुख दर्द भरे हुए वो अपने पोएम्स लिखता है, सॉन्ग्स लिखता है. किसके लिए, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो. यानी अपने जो लवर है, मिस्ट्रेस मीन्स लवर है, जो अपनी जो गर्लफ्रेंड है, उसे उसकी नज़र खुद पे आए, या वो उसे इंटेंशन दे उसका, ये सब करने के लिए वो बहुत ही दुख दर्द भरे हुए वो फुल बैलेड वो लिखता है. Then a soldier full of strange oaths and beard like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. So, William Shakespeare, he shows the fourth stage of a person, which is soldier. So, in this situation, how he behave. Okay, so he was full of strange oaths and beard like the pard. Pard it's a poetic short form of leopard. तो लेपर्ड का शॉर्ट फॉर्म है पार्ट, जो पोएट्स हमेशा यूज़ करते हैं अपने पोएम में. सो यहाँ पे जो है वो पर्सन वो पूरे एनर्जेटिक होता है, प्रोमिसेस लेता है, देता है, और बिल्कुल बियर्ड मीन्स ब्रेव लेपर्ड की तरह वो बिहेव करता है. ओके Here he is willing to do anything to prove his manliness. In this fourth stage, he jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. Bubble reputation it means an image that is very short-lived, just like a bubble. जो बबल्स जैसे होते हैं कि वो कुछ ही पल में गायब हो जाते हैं, उसी तरीके का जो एक रिपुटेशन होता है, जो क्लास होता है, जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो पाने के लिए वो कुछ भी करता है. ही ट्राइज बिल्डिंग अ रिपुटेशन फॉर हिमसेल्फ एंड हाउ एवर शॉर्ट लिव्ड, एंड ही इज़ ऑल्सो विलिंग टू विन his reputation, and he will take a risk for his reputation. He is full of jealousy and aggressive enough to pick up a fight to defend his honor. वो अपना आत्मसम्मान पाने के लिए सडन
एंगर हो जाता है, बहुत ही जेलसी फील करता है कोई भी चीज़ के लिए, और झगड़ने भी लगता है। इतना भी नहीं हो, इतने से ही उसका रेपुटेशन है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उसे नहीं मिली, मैनलीनेस जो है वो उसे अगर नहीं मिला तो वो झगड़ने पर भी उतर जाता है। तो ये 4 स्टेज है सोल्जर की, कोई भी पर्सन की। Even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly with good capon leaned, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise sauce and modern instance, and so he plays his part. After that, his fourth stage is over, he takes on the role of middle-aged man. Then his appearance changes as he has a pot belly, serious eyes, and a formal cut beard. When a person enter in his fifth stage, which that is a middle age, then his behavior is totally changed. His eyes looks very serious, and he take a job, beard of formal cut. It means he is serious about his profession. Okay, and full of wise sauce means saying, बहुत ही वाइज अपने बड़े बड़े उसके ख्यालात होते हैं और उसे वो प्रेजेंट करता है, एंड मॉडर्न इंस्टेंस, एंड सो ही प्लेज एज हिज पार्ट इन दिस स्टेज. नाउ ही बिकेम्स मैच्योर, हैविंग गेन experience in life, and he is now full of wisdom and has lots of experience to share. सो इस स्टेज में उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके पास विजडम होता है जो पहले नहीं होता, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ, लेकिन अब वो कैसे थोड़ा एक्सपीरियंस रहते हैं, उसके पास बहुत सारे जो अपने एक्सपीरियंस से वो गुज़र गया है उसके बारे में उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है. ओके, तो और इस एज में उसकी जो फिगर जो है वो कैसे हो जाती है, थोड़ी फुल जाती है. Okay, in fair roundly belly with good capon lean, with a good capon lean means with excess fat from careless eating habits. तो उसका जो बेले फैट जो है वो बढ़ जाता है, उसका जो पेट का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि खाने के इसमें उसका ध्यान नहीं रहता, खुद की तरफ ध्यान नहीं रहता, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने प्रोफेशन की तरफ दौड़ लगाता है और खुद के बॉडी की तरफ वो ध्यान नहीं देता उसकी वजह से. और इस स्टेज में उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि शेयर करें और औरों को भी सलाह दे. तो ऐसी होती है इंसान की फिफ्थ स्टेज, जो विलियम शेक्सपियर ने इस स्टांजा में हमें एक्सप्लेन की है. Sixth age shifts into the lean and slippered Patloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse well saved a world too wide for his strong shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. So, in the sixth stage, he is an old man who is forgetful and well past the prime of his life. He needs spectacles due to his weak eyesight, and his skin hangs loosely from his body. He wears the trousers which he had saved from his youth and which now don't fit since his legs are thin. And his manly voice has been reduced to the shrill voice of a child. Every time he speaks, it seems that he is whistling because he has lost some of his teeth. In this stage, what happened? जो एक पर्सन का जो है वो इंसान बुढ़ापे की तरफ झुक जाता है. ही इज़ नाउ ओल्ड मैन, ही टर्न इनटू ओल्ड मैन. और उसने जो अपने बचपन से या अपने जवानी से जो पैंट्स है, शर्ट्स है, वो संभाल के रखे थे, वो अब उसे कैसे होने लगते हैं, बहुत ही लूज़ होने लगता है. यूथफुल होस मीन्स क्लोज फिटिंग कवरिंग ऑफ लेग, यानी पैंट्स जो उसके जवानी के जो कपड़े होते हैं वो अब उसे बहुत ही लूज़ होने लगते हैं. उसकी स्किन जो है वो ऐसे अपने बॉडी से वो लटकने लगती है और उसका जो वॉइस है वो ऐसे होता है
कि उन्हें खुद को ही लगता है कि मेरे वॉइस में से क्या विसल बज रही है। वो बोलते समय उनकी आवाज़ जो है वो फिर से बच्चों की तरह हो जाती है, और जो दांत नहीं होने की वजह से उनका जो साउंड है वो विस्लिंग करने लगता है, और जो आईसाइट्स है वो परफेक्ट ना होने की वजह से स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत होती है। और वो अपने हाथ में हमेशा क्या रखते हैं, पाउच रखते हैं। जैसे बुढ़ापे में कोई भी कुछ सामान रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए हाथ में पाउच रखता है, वैसे वो भी अपने पास पाउच रखता है। सो दिस इज़ अ 6th स्टेज. Last scenes of all that ends this strange eventful history in second childishness and merry oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. At last and finally he enters the last stage of his life, which is childishness. Okay, here he became very old, and he entered into his second childishness. Second childishness means a return to the helpless ignorant stage of child. तो जैसे बचपन में होता है कि सब बच्चे हेल्पलेस होते हैं, वो खुद का काम खुद नहीं कर सकते, तो उसी तरह यहाँ पे भी जो बुढ़ापा आ जाता है तो वहाँ पे भी वो क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है. सो दैट इज़ सेकंड चाइल्डिशनेस. And all this situation, the state of being unaware or unconscious of surroundings and happening. So उसके आजू बाजू में सब कुछ जो है वो उसे कुछ भी नहीं समझ में आता, अपने आजू बाजू में क्या शुरू है वो अवेयर नहीं रहता, यानी oblivion. Okay, oblivion means the state of being unaware or unconscious of surroundings and happening. Then sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Sans means without, यानी उसके पास अब जैसे बच्चों के पास टिथ नहीं होती, उसकी नज़र नहीं होती, उसे कुछ टेस्ट नहीं समझती और कुछ भी नहीं होता, मेमोरी नहीं होती, दिखता नहीं अच्छे से, जैसे कि बच्चों का होता है वैसे ही अब बुढ़ापे में भी होता है. ही हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी, ऑल्सो लॉस्ट हिज टिथ, आई साइट एंड टेस्ट ऑल्सो. सो this is a very beautiful, wonderful poem written by William Shakespeare, All the World's a Stage. In this poem, William Shakespeare described 7 stages which is followed by us. I hope you understand this poem, and keep going, keep watching, listen carefully, and if there is any questions, any queries, then ask to me. Thanks to all of you.